अच्छा डॉक्टर चौधरी, तो बताइए कि आज आई नो there's plenty of lists that I can see, but I think you are the best person to tell us कि आज किसके बारे में we are going to talk about and किसके बारे में information देना चाहते हैं. Okay, about this brochure, I would say if somebody wanna get information, Right. so they can call us. Our number is on the screen, Right. 718-533-0646, and get this brochure. This brochure has all the medicine that we have, plus it has prices. It has it has a small like a explanation what this medicine is for. So it's about 130 formulation. This is my own formulation, is herbal and homeopathic. Okay. Some are like tooth powders, Right. eye drops, Right. creams for skin care, calendula cream, amidine, Right. and you don't have to be like a patient or sick to get this medicine. Prevention is always better. So if you have your low immune system, so you should take something for your immune system as a supplement. Okay. In that we have Immunoforte, Immunolin tablets. For children, they don't eat. They get frequent frequent infections. Right. And they have bedwetting problems. All those kind of things. They have eczema, skin problems. So उनके लिए जो है अल्फा टॉनिक है, बायोप्लाज्मा है, एपिटाइट इन्हेंसर है, इम्यून सिस्टम के लिए है, थ्रोट के लिए है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं बच्चों को अमूमन, और एंटीबायोटिक खा खा के उनका बुरा हाल हो जाता है, और उसकी वजह से भी उनकी एपिटाइट जो है वो कम हो जाती है बार बार एंटीबायोटिक देने से. पर आई थिंक डॉक्टर एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, एंटीबायोटिक्स जो लोग लेते हैं हर साल लेते हैं क्योंकि कभी बीमार होते हैं, तो दे आर सो डिपेंडेंट. That also weakens your immune system? Yes, of course, that's right, yeah. Because what happens, it kills all the bacteria, friendly bacteria also, Okay. that we need in our body. Okay. And that's why a lot of people get diarrhea after taking antibiotics. And they've been getting so much treatment for the diarrhea, but it's not helping. So for them, I would say home remedies में है कि योगर्ट इस्तेमाल करें, और एसिडोफिलस पाउडर आता है होम्योपैथिक हर्बल में, और सप्लीमेंट्स जैसे, तो वो पानी में मिक्स करके पीने से वो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. Okay. तो उसके अलावा डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, जॉइंट प्रॉब्लम, पेन आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को. उसकी वजह बहुत सारी होती हैं. आर्थराइटिस भी है, शैटिका पेन है, हेडेक्स हैं, बॉडी पेन है, टू मच ओवर वर्क. कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन ओवर वर्क इतना है उनका कि दे वर्क इवन 6-7 days a week. Then they work at home, they cook, especially women. I noticed that so many women, they have children, they have home, they have to cook, they have to clean home, and then along with that they have to work. Work also, right. So, and this thing is taking their like so much stress on the body. Right. So this way, even they don't have any medical problem, they go to the doctor for checkups, and even with day off, like even day off they go to the doctor. Right. So that's another work. Right. And they go and they check everything is okay, fine. So they don't have to be like doctor don't give them any medication because they don't find anything. Right. But because of the stress, because of the overwork, their body is very tired. They feel weak. Tired in the morning. When they get up, they feel very tired. Right. So for them, they should take rest is very important, because 1 or 2 days rest, and rest means you should stay on the bed. Don't get up even, Right. and then take supplements for that. For them, we have alpha tonic, we have female formula, male formula. Those things they can keep taking all the time rather than taking other vitamins. Right. And proper rest is very important. When you say proper rest, I do want to mention and say that that when we take rest when we're home, we kind of give ourselves like chalo TV dekh lete hain, and that's also you're not getting rest because mentally you are putting so much effort in watching with your eyes, Right. and you're thinking about what's going to happen next, Right. still taking your energy a lot of. That's right, yeah. So, And right, go ahead. yeah, that's not rest. And usually people after work, they come home and they watch TV late, on the computer these days, internet and all this, messaging and all this Facebook and those. Facebook, which is very important. Social media is also taking so much of energy. That's right. So it prevents you from the sleeping. Even you getting sleep, but you are so busy.
Right. So those things you have to be taken care of it. All right, we take a call and then we'll move on and see Dr. Chaudhary what else he has to share with us. Hello. Hello? Hello. Hello? Hi, who's this? Yeah, my name is Pinky Pinky. Yes, Pinky. from New Jersey. From New Jersey. Yes, Pinky. What would you like to ask Dr. Chaudhary? I want to talk to Dr. Chaudhary. Right, go ahead. Hello. Hello. Hello जी. What's your... मुझे ना हाई ब्लड प्रेशर है काफी टाइम से Okay. और मैं एलोपैथिक ले रही हूँ मेडिसिन और मुझे बहुत उनसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं स्वेलिंग ये वो Okay. every time I go to the doctor she add one more so it's not helping so what's just for homeopathic Yeah. high blood pressure. Yeah, definitely we do have it, and I would advise you to call this number that you see on the screen, and then when I get office, I'll call you in detail and what's the best thing we have, we recommend you, and then slowly you'll be off from your medication. So you can give me right now any name so I can buy or not over the counter or something like that. Yeah, no, it's not over the counter, it's a hypertense, that's my own formulation. And we don't charge any consultation, okay? So don't worry about that. So That's all right. But I live in New Jersey and I think you are in New York. That's all right. yeah, I have patient all over, It's not a problem. You can get it medicine tomorrow, Okay. So- All right. I think the question There's a is medicine, that so yeah. you can mail it, right? If Yeah, of course. Yeah, you don't have to come. Yeah. Right. You don't have to come, and there's a medicine called Hypertense. It's a combination of homeopathic and herbal liquid, is extract, and you're gonna take that. Plus, I recommend you something for nerve tonic that make your stress level low. You feel relaxed, and then other thing is you should sleep well. Okay? Do you sleep well or no? I think, sometimes it's not a lot, but moreover, I have a lot of stress, probably. That's why I think. Yeah, that's why. So that we treat the cause of the problem, okay? What's the problem that your body is having, and then because of that you getting blood pressure. You understand? Yeah, I know. Yes. So we treat for the problem. This way you get better. Okay. All right. All right. All right. All right, Thank you. Thank you very much. Hello. 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 Yes, मैं अनीता कुमारी बोल रही हूँ. जी अनीता जी बोलिए क्या आपका सवाल है? मैं डॉक्टर से बात करनी है. मेरे को लॉन्ग टाइम से बीपी हाई रहता है. ओके बीपी हाई रहता है लॉन्ग टाइम से और कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है. ओके. तो अब ये पहली कॉल भी यही थी, जैसे उनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई है. हाँ जी. तो उसके लिए होम्योपैथिक में जो है बहुत अच्छा इलाज है. ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए भी है. तो रादर देन टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, और कॉल करके आप मंगवा सकते हैं ऑफिस से. हाँ जी. मैं कहा कॉल करके ਤੁਸੀਂ ऑफिस ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਸਿਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ? हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने पहले लास्ट थर्सडे में बताया था एक वो दवाई बताई थी गार्लिक और जिंजर की. जी प्रो हार्ट के नाम से. जी हाँ जी. तो नाम तो मेरे को याद नहीं, पर गार्लिक और जिंजर विद हनी के साथ आपने वो दिखाई थी बोतल. जी जी. तो क्या वो मैं मंगवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल. ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਟ. प्रो हार्ट. ओके. ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਨਾਲ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 53306466 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਔਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਘਟੇਗੀ. Thank you very much. Charlie, since we have two calls for high BP, blood pressure, hypertension, what are the causes and what can we prevent and avoid for not having? This is very small percentage because of the hereditary problem. Okay. That your father, parents, or anybody, because of the hereditary, so you cannot do anything about that. You should have to take medicine to have it controlled. And 90% problem blood pressure we have here is because of the stress, because of the too much work, not sleeping well, and all those things. Small time में बहुत सारी चीज़ें करने का जो दिमाग में होता है कि अक्सर end of the day we have half of the things that we didn't finish, that in the morning we thought about it.
तो इतना कुछ करने में, जैसे कहते हैं ना कि इतना ना सोचें कि जो पूरा हो ना सके, एंड टेक इट इजी, रिलैक्स लाइफ। तो वो चीज़ें करने से मतलब, और अभी क्या है कि अगर आप नींद नहीं करेंगे, नॉर्मल बंदा अगर आज वो ना सोए और सुबह डॉक्टर के पास जाए और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे उसका, तो वो ब्लड प्रेशर हाई होगा, एंड दे गिव यू द मेडिसिन, यू नो। सो यू नो, नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ी जो चीज़ें करके आप बगैर मेडिसिन के भी आपका प्रॉब्लम हल हो सकता है। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत अच्छी उसका इलाज है ब्लड प्रेशर का, उसमें हम नर्व टॉनिक भी देते हैं जो नर्वस सिस्टम के लिए, जो लोग वेरी सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रेस बहुत आ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जल्दी। तो उनको चाहिए कि कुछ सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए जो कि उनके नर्वस सिस्टम के लिए हो, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। प्लस होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो फाइंड आउट करता है कि वजह क्या है, किसी भी कोई भी पेशेंट आता है तो उससे बातचीत करके वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन वी ट्रीट दैट। और समहाउ मतलब कैसा होता है कि ये नहीं कि मेडिसिन, ब्लड प्रेशर है तो मेडिसिन दे दो, कोलेस्ट्रॉल है तो ये दे दो, पेन है तो ये दे दो, ये फला चीज है तो उसकी मेडिसिन। मतलब कि हर एक प्रॉब्लम की एक डिफरेंट मेडिकेशन है, और करते करते इतनी मेडिसिन हो जाती है कि वी आर, आवर लाइफ इज डिपेंड ऑन मेडिसिन। राइट। और अगर रीजन है अभी आपको नींद ही नहीं आ रही और आपका ब्लड प्रेशर है, तो आप दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन सो पूरा नहीं रहे, आप टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं। तो अगर होम्योपैथिक डॉक्टर जब पूरा मतलब बॉडी का इलाज करता है, पूरे बंदे का इलाज करता है एज ए होल, तो वो पूछता है कि भाई रात को आप सोते हैं पूरा कि नहीं सोते, तो वो कहते हैं मैं तो टीवी देखता रहता हूँ या इंटरनेट पे होता हूँ, तो सुबह आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है। तो अगर आप अपना उस तरीके कार को चेंज करें, अगर नींद पूरी करें 7-8 घंटे, जो भी कई लोगों की नींद होती है 7-8 घंटे, कईयों को ज्यादा भी चाहिए, कोई कम नींद में भी अपना उनकी बॉडी सही हो जाती है। तो मतलब वो नॉर्मल चीजें करें। मुझे आपसे एक सवाल करना है कि व्हाट अबाउट जब डॉक्टर्स जो है, एलोपैथिक की बात कर रही हूँ मैं, कि प्रिवेंशन के लिए आपको जब दवाइयाँ देते कि आपकी किडनीज ठीक रहे या ब्लड प्रेशर आपका लो रहे, क्या वो मेडिसिन लेनी चाहिए टू प्रिवेंट कि आगे जाके भी किडनी ना फेल हो? आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल अ डायबिटिक पर्सन को रेकमेंड करते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर अगर कोई मेडिसिन ले रहा है कि आगे जाके अपनी किडनीज ना खराब हो, एंड दिस विदाउट इवन डोइंग इट्स नॉट, there's nothing wrong with it. To prevent it, they give you over medicines. Is it, do you think you would suggest that the person should take it or no? No, I would suggest alternative medicine, herbal and natural medicine to prevention, not allopathic medicine. उसमें आप बहुत कॉमन है कि किडनी को प्रिवेंट करने के लिए डायरेटिक रेकमेंड किए जाते हैं एलोपैथिक में, दैट इज हैज अदर साइड इफेक्ट्स आल्सो। और अगर जैसे ब्लड को थिन करने के लिए वो एस्प्रिन रेकमेंड करते हैं, तो दैट इज अ केमिकल एंड दैट यू नो मेक योर स्टमक प्रॉब्लम। और बहुत लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, हर एक को जरूरी ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा वो होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, योर बॉडी इज नेचुरल, बॉडी वांट्स नेचुरल foods and you know like herbs and vitamins, like natural, not like artificial things, chemical things, man made things जो होती हैं, वो बॉडी जब उसको बॉडी में जाते हैं तो बॉडी वो मतलब परेशान हो जाती है कि ये क्या चीज़ आ गई। और ज़्यादातर जो आजकल जो मॉडर्न बीमारियां हैं और प्रॉब्लम्स हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस कि आप इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, इतने ज्यादा कलर चीजें फूड में यूज हो रही हैं। अगर आपको लेट्स सी सीरियल की एग्जांपल है, अगर आप सुबह सीरियल खाते हैं तो जो डब्बों का सीरियल आता है उसमें ओट मील भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें फ्रूट जूसेस हैं, ये दोज आर फाइन, बट उनका इनहेंस मतलब टेस्ट इनहेंस करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, प्रिजर्व करने के लिए उसमें कलर और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो वो चीजें जो है वो प्रॉब्लम करती हैं, वो एलर्जी पैदा करती है। अगर वो आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में जाएगा। आपने देखा अक्सर कई लोग जैसे कोई चीज खाई तो उनकी सुबह आँख स्वेल हो गई, जैसे कोई स्किन पे रैशेज हो गए, तो वो बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ द फूड। अगर आप घर में सीरियल बना रहे हैं, जैसे आम घरों में जैसे हम लोग बनाते हैं दलिया, ओटमील या ओटमील है या इस तरह की चीजें, तो आपको पता है उसमें क्या ओटमील है, मतलब सिंपल, या कनक का दलिया है, गंदम का, उसमें आपने चीनी डाली, घी डाला, पानी से बॉईल किया, तो यू नो द इंग्रेडिएंट, सो दैट्स नो प्रॉब्लम।
लेकिन अगर उसमें और इतने केमिकल्स वाली चीजें जैसे पैक्ड फूड्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव उसमें बहुत होते हैं, या फ्रोजन फूड्स आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव और कलर होते हैं कि खूबसूरत उसको प्रेजेंटेशन करने फूड अच्छा लगे। इवन रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, अगर मतलब चिकन टिक्का या इस तरह की चीज़ें लेते हैं, आप कोई वेजिटेबल राइस भी लेते हैं तो उसमें इतना वो मिक्स कलर डाल देते हैं। व्हाट फॉर, यूज्ड टू बी लाइक ज़ैफरान, ये जो होती है वो यूज़ होती थी, तो उस पर कलर वो नेचुरल है, वो फूड है, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर येलो कलर डालेंगे जो केमिकल है, फूड कलर्स हैं, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं। और इतना ये एक्यूमुलेशन स्लोली होके आपकी बॉडी जो है वो तो मतलब कि इन अ वे आप रेकमेंड करते हैं, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि जितना घर का खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ, जितना आपको पता है कि आपने सब्जी धोई है, अच्छी तरह से धोई है, आपने बॉईल की है या पका रहे हैं, मतलब कि अपने घर के इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी, जितना हो सके घर का खाना, क्योंकि मैन मेड चीजें जो है ना वो यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे केमिकल्स जो है, और उसकी वजह से बॉडी जो है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। और ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, एलर्जीज हैं, इवन आई वुड से कि जो कई लोग के सभी यूज करते हैं परफ्यूम, जैसी, और इतने लोगों को सिर्फ परफ्यूम से एलर्जी है, लेकिन दे डोंट स्टॉप यूजिंग, वो यूज कर रहे हैं और आपको एलर्जी हो रही है। तो इज लाइक ए केमिकल, उसमें अल्कोहल होता है, उसमें जो फ्रेगनेंसेस होती हैं, नेचुरल फ्रेगनेंसेस फाइन, बट अल्कोहल, उसमें अल्कोहल को बिटर करने के लिए उसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल डाले जाते हैं, और उन केमिकल से बंदे को एलर्जी होती है। अभी अक्सर लोग हैं जो स्प्रे करते हैं सुबह, वो एलर्जी चीखें आ रही हैं, और अक्सर लोग तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते कि मुझे एलर्जी है, लेकिन किस चीज़ से है। वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, यानी कि परफ्यूम्स यूज कर रहे होते हैं, या के कपड़ों में जब वॉश करते हैं तो उसमें वो मतलब सॉफ्टनर है और ऑल दिस काइंड, तो उसमें इतने केमिकल्स होते हैं और जो उनकी बॉडी पे वेरी इरिटेंट होते हैं। आई थिंक आपसे बात करके आई थिंक एंड आई फील दैट जो पहले टाइम पे, जो पहले जमाने में किया जाता था, जिस जैसे नहाते थे, क्या साबुन यूज किया करते, देसी साबुन था बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि सिंपल ऑयल्स, और कोई ऐसी फ्रेग्रेंस है, कोई इतनी अच्छी स्मेल नहीं। शैम्पू जब यूज किया करते थे, कपड़े जिस तरह से हम धोआ करते थे, खाना ज्यादातर घर में ही खाया जाता था, बाहर का तो उस टाइम का था ही नहीं कि बाहर से खाना खाएं। बट आई थिंक सो इट्स बेटर टू गो बैक इन दोज डेज द वे इट यूज्ड टू बी डन। और अभी जो है ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं, तो क्या है, फार्मिंग फूड, जो क्योंकि एग्स हैं या फ्रूट्स हैं, देखते हैं यहाँ कितने वो खूबसूरत होते हैं। एप्पल भी बड़ा खूबसूरत लगता है, उसमें स्मेल कोई नहीं, उसमें एरोमा कोई नहीं, न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि वो मतलब केमिकल डाल के उनको मतलब फुला देते हैं। लाइक इतना छोटा सेब, इतने बड़े बड़े सेब, इतने बड़ा बनाना। एप्पल, आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू ईट एप्पल इन इंडिया, या आप गाजर कहते हैं, when you used to bite it, the जो रस होता था used to go down here to your arms. Over here, it's nothing like that at all. Right. और even अभी यहाँ जो ऑर्गेनिक फूड मिलते हैं उनमें वही चीज़ होती है, क्योंकि उसमें केमिकल यूज नहीं होते और नेचुरल ग्रोथ होती है जैसे भी, तो उससे फिर क्या है कि उसमें फ्लेवर होता है, उसमें टेस्ट होता है, यू अच्छा लगता है आपको, और आपकी बॉडी में जो है ना केमिकल्स, अभी कितनी रिसर्च आई है कि वो उसमें शो हुआ है कि जो लोग ज़्यादा फ्रूट खाते हैं उनको भी कैंसर, मतलब उनको ज्यादा कैंसर हो गया है। इट्स नॉट कंफर्म बट लाइक सो मेनी स्टडीज। उसकी वजह ये है कि फ्रूट अगर जो बंदा ज्यादा खाएगा, ज़ाहिर है उसके केमिकल भी जो है इनटेक उसका ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसको कैंसर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे बीन यूजिंग दैट। तो उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, मतलब फ्रूट बाय इटसेल्फ इज नॉट प्रॉब्लम, बट अगर आप उस तरह के फूड ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं जिनमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, तो उससे, और इस तरह सब्जियां भी और इस तरह की सब चीजें जो है